welcome once again. In this video, now we will be starting with the second chapter revision and that chapter's name is Estimation of Working Capital. बराबर बहुत ही important chapter है from your exam point of view. काफी अच्छा weightage भी है ये chapter का. Okay, so now let us start with a quick recap or revision of this particular chapter जिसका नाम है Estimation of Working Capital. अब ये चैप्टर में we will be seeing 6 points. बराबर जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे we will be studying 6 points. First we will be starting with normal basic introduction. उसके बाद we will study something called as types of working capital. उसके बाद operating cycle which is one of the most important concepts. उसके बाद पढ़ेंगे estimation of working capital. This is the most critical out of all the points that we are going to study. Estimation of working capital के बाद देखेंगे types of current asset policies and lastly to wind up this chapter we will finally study maximum permissible bank finance. बराबर तो जैसे आपको दिख रहा है ये वीडियो में we will be covering around these 6 points to finally complete this particular chapter. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं without any delay. Starting with the introduction of this chapter, दोस्तों, what do you mean by working capital? Working capital in short is, in simple terms, working capital is the money required by a company to run the business on a day-to-day basis. मतलब बिजनेस चलाने के लिए जो हमें नेसेसरी खर्चे करने पड़ते हैं, ओके, दैट अमाउंट इज टर्म्ड एज वर्किंग कैपिटल. अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है सर? हाउ डू यू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल? दोस्तों, वर्किंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड एज करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. मतलब वर्किंग कैपिटल इन अदर वर्ड्स इज excess of current assets over current liabilities. Working capital in other words is excess of current assets over current liabilities. बराबर current assets में से अगर current liabilities को minus कर दिया तो दोस्तों जो बचेगा this is nothing but working capital. बराबर in short what is working capital? वो पैसा जो हमें normal business चलाने के लिए ज़रूरी है, मतलब वो सब खर्चे जो normal business चलाने के लिए ज़रूरी है, that amount is termed as working capital. In other words it is day-to-day expenses of the business. Okay, तो working capital जब हम पढ़ते हैं तब one of the most important ratios that we come across is something called as a current ratio. दोस्तों, current ratio is a variation of working capital. Current ratio in simple terms is current assets upon current liabilities. बराबर. अब सर करंट असेट्स में क्या क्या आता है? दोस्तों, इन्वेंट्री इज इंक्लूडेड इन करंट असेट. इन्वेंट्री मतलब स्टॉक. बराबर. उसके बाद डेटर्स. बराबर. उसके बाद बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, अदर करंट असेट. बराबर. बिल्स रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऑल दीज आर अ पार्ट ऑफ करंट असेट्स. बराबर. करंट लायबिलिटीज में सर क्या क्या आता है? दोस्तों, करंट लायबिलिटीज में वी हैव क्रेडिटर्स, वी हैव बिल्स पेएबल, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह कुछ रहा, प्री रिसीव्ड इनकम. All these form a part of current liabilities. तो concluding this part, my dear friends, current assets में क्या क्या आता है वो डिस्कस कर लिया. current liabilities में क्या आता है वो भी डिस्कस कर लिया. अब सर what is the meaning of current ratio? दोस्तों, current ratio in simple terms shows how much rupees of current assets we have per rupee of current liability. अगर current liability 1 रुपए का है तो उसके सामने हमारे पास कितने current assets है? For example, if the current ratio is 3:1, just an example, if the current ratio is 3:1, so in that case, that shows that for every 1 rupee of current liability with us, we have 3 rupees of current assets. बराबर काफी sufficient है, yes or no? Ideal current ratio is 2:1. दोस्तों, ideal current ratio is 2:1. बराबर मतलब for every 1 rupee of current liability that you have, you should have 2 rupees of current assets. बराबर. So that is all about current ratio. एकदम simple ratio है. Current ratio is a variation of working capital. Working capital is current assets minus current liabilities. Current ratio is current assets upon current liabilities. Okay. So with this हमारा basic introduction खत्म हुआ. एकदम simple point है. बराबर. That is all about introduction. Moving on to the next point. If you see the next point जो हमने point discuss करने हैं उसमें next point is types of working capital and there are in all 4 types of working capital. In all there are 4 types of working capital. सबसे पहले gross working capital, उसके बाद net working capital, उसके बाद permanent working capital and lastly temporary working capital. Sir, what all is included in these type of working capitals? चलो देखते हैं.
फर्स्टली दोस्तों, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज द टोटल ऑफ करंट असेट्स. एकदम सिंपल टर्म्स में इफ आई एम सपोज टू पुट, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज टोटल ऑफ करंट असेट्स. हमारे पास जितने भी करंट असेट्स है उन सब का टोटल, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. बराबर. बचपन में हम पढ़ते थे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस एंड नेट. ग्रॉस वैल्यू ऑफ असेट्स माइनस डेप्रिसिएशन, तो हमें मिलता था नेट बुक वैल्यू. बराबर. वैसे ही यहाँ पे है दोस्तों, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज सिंपली द वैल्यू ऑफ करंट असेट्स. उसमें से आप करंट लायबिलिटीज माइनस कर दोगे तो मिलेगा आपको नेट वर्किंग कैपिटल. बराबर. तो व्हाट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल? सर, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज ओनली इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स. लेकिन अगर वही उसी में से मैंने माइनस कर दिया करंट लायबिलिटीज, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों? तो हमें मिलेगा नेट वर्किंग कैपिटल. बराबर. तो आपके फर्स्ट टू टाइप्स आर ओवर. नेट वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स ही. ओके. सो टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन नाउ, तीसरा टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल इज कॉल्ड एज परमानेंट वर्किंग कैपिटल. तीसरा टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल इज कॉल्ड एज परमानेंट वर्किंग कैपिटल. अब इसमें क्या आता है सर? देखो दोस्तों, कैन आई से दैट हम हमारे पास हमेशा कुछ एक्स्ट्रा पैसा रखते हैं. बराबर. हमारे वॉलेट में कुछ एक्स्ट्रा पैसा रखते हैं. हाँ सर. बराबर. और वो हम किसी को भी नहीं बताते. यस और नो? बराबर. वो सिर्फ हमें पता होता है कि मेरे पैसे, मेरे वॉलेट में इतने पैसे हैं. वो सिर्फ हमें पता होता है कि मेरे वॉलेट में इतने पैसे हैं. वो हम किसी को कुछ नहीं बताते. यस और नो? बट दिस कैश वी मेंटेन एट ऑल द टाइम्स. बराबर. इसके ऊपर जो पैसा है ना, हम उतना खर्च करते हैं. बट देयर इज सम अमाउंट ऑफ कैश ऑलवेज विद अस दैट वी मेंटेन ऑल द टाइम्स. दोस्तों, वही है कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल. परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज दैट वर्किंग कैपिटल जो एक कंपनी अपने पास हमेशा रखेगा. That is called as permanent working capital, also called as fixed working capital. बराबर. permanent working capital is that working capital जो एक कंपनी अपने पास हमेशा रखेगा. उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा भी मेंटेन करेगा, बट एक कंपनी मिनिमम इतना अमाउंट तो हमेशा अपने पास मेंटेन करेगा, और उसी को बोलेंगे परमानेंट वर्किंग कैपिटल. बराबर. परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोर करंट असेट्स. कोर करंट असेट्स हम डिटेल में देखेंगे इन मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस वाला कॉन्सेप्ट. वो जब भी करेंगे तभी डिस्कस करते हैं. बट व्हाट इज कोर करंट असेट्स वो तब डिस्कस करेंगे. बट एज ऑफ नाउ परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज आल्सो कॉल्ड एज कोर करंट असेट्स. आई होप दैट मच पार्ट इज क्लियर. ओके. लास्टली, टेम्पररी वर्किंग कैपिटल. दोस्तों, परमानेंट के ऊपर वाला जितना भी वर्किंग कैपिटल है ना, दैट इज कॉल्ड एज टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल. बराबर. दैट इज कॉल्ड एज टेम्पररी वर्किंग कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल. परमानेंट मिनिमम इतना हम मेंटेन करेंगे, उसके ऊपर जितना भी वर्किंग कैपिटल मेंटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टेम्पररी वर्किंग कैपिटल. एंड इसी के साथ दोस्तों वी आर डन विद टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल पॉइंट ऑल्सो. सो जितने भी पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, बराबर, टोटल 6 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, उसमें से 2 पॉइंट्स आर ओवर, 2 पॉइंट्स आर डन. नाउ वी स्टार्ट विद द एक्चुअल चैप्टर. ये तो लाइक बैकग्राउंड था चैप्टर का. अब शुरू करते हैं दोस्तों एक्चुअल रिवीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, विच स्टार्ट्स विद ऑपरेटिंग साइकिल. विच स्टार्ट्स विद ऑपरेटिंग साइकिल. चलो, अब व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल ये डिस्कस करेंगे सबसे पहले, एंड इसके जो भी फैक्टर्स है, बराबर, आपको स्क्रीन पे एक एग्जांपल भी दिख रहा होगा, वो भी डिस्कस करेंगे. चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल. नाउ ऑपरेटिंग साइकिल दोस्तों इज द टाइम ड्यूरेशन टेकन by our operating activities to complete one cycle. सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब क्या होता है? दोस्तों, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी. बराबर. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, तो व्हाट विल बी ऑपरेटिंग साइकिल फॉर मी? सबसे पहले क्या होगा? व्हेन आई स्टार्ट अ बिजनेस, तो फिनिश गुड्स तो हम ऐसे ही नहीं बेचेंगे. सबसे पहले रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे सप्लायर से. सो रॉ मटेरियल्स खरीदा. Not necessary all the raw materials are put into production on the same day. थोड़े दिन के लिए वो रॉ मटेरियल का स्टॉक हमारे पास होगा. फिर आफ्टर सम डेज वी विल ऑल्सो इंजेक्ट, स्लोली एंड स्टेडीली वी विल स्टार्ट इंजेक्टिंग दैट रॉ मटेरियल्स इनटू WIP. रॉ मटेरियल्स को WIP में डालना मतलब सिंपल, रॉ मटेरियल्स पे काम शुरू करना. रॉ मटेरियल्स पे काम शुरू हो गया, वो ऑटोमेटिकली WIP बन जाएगा. बराबर. सो रॉ मटेरियल्स देन विल बिकम WIP. WIP will then become finished goods, right? फिनिश गुड्स फिर हम बेचेंगे कस्टमर्स को, एंड थोड़े टाइम के बाद कस्टमर्स हमें पैसा देंगे. बट कस्टमर से जो पैसा मिलेगा वो फ्यूचर में है. बट मेरे को आज रॉ मटेरियल्स खरीदना है, तो आई विल हैव टू पे समथिंग
टू द सप्लायर्स टुडे, और सप्लायर जितना टाइम देगा वो टाइम पीरियड में मेरे को उसको पेमेंट तो करना है। मतलब कैन आई से फर्स्ट मेरे जेब से पैसा जाएगा, उसके बाद घूम के मेरे जेब में पैसा आएगा। जेब से पैसा जाएगा मतलब सप्लायर को हम पेमेंट करेंगे, एंड घूम के आफ्टर सम टाइम, वो सम टाइम क्या है सर, वो सम टाइम बताता हूं क्या है, बट सप्लायर को पेमेंट कर दिया, अब आफ्टर सम टाइम घूम के कस्टमर्स हमको वो पैसा वापस देंगे, बराबर। ऑफ कोर्स उसमें हम हमारा प्रॉफिट वगैरह सब इंक्लूड करेंगे, बट द टाइम वी रिसीव द पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर्स, बराबर, that will be a cash inflow, that will be the duration of cash inflow. The time we make the payment to the suppliers, that will be the duration of cash outflow. तो दोस्तों ये जो घूम के थोड़े टाइम के बाद पैसा मिलेगा, वो थोड़े टाइम को ही हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, वो थोड़े टाइम को ही हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। सो व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल इन सिंपल टर्म्स? अगर समझने के लिए हम ऐसे भी समझ सकते हैं ऑपरेटिंग साइकिल को, दैट ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम ड्यूरेशन टेकन बाय 1 रुपी ऑफ कैश आउटफ्लो टू कम बैक टू अस, बराबर। एक रुपया आज जा रहा है, वो कब घूम के हमारे पास वापस आएगा, दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल, बराबर। अब दोस्तों सोचो, सोच के ट्राई करो आंसर करना, दैट ऑपरेटिंग साइकिल जितना कम उतना अच्छा कि जितना ज्यादा उतना अच्छा? ऑपरेटिंग साइकिल जितना कम उतना अच्छा कि जितना ज्यादा उतना अच्छा? नाउ यू विल आंसर, सर ऑपरेटिंग साइकिल जितना कम उतना अच्छा, क्योंकि कम ऑपरेटिंग साइकिल, अ लोअर ऑपरेटिंग साइकिल और वर्किंग कैपिटल साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल को वी ऑल्सो कॉल इट एज वर्किंग कैपिटल साइकिल। A lower operating cycle, sir, will show that cash is coming to us faster. हमारे पास पैसा जल्दी आ रहा है। ऑपरेटिंग साइकिल अगर हम ऐसे समझे, ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम ड्यूरेशन टेकन बाय 1 रुपी ऑफ कैश आउटफ्लो टू कम बैक टू अस, बराबर। अब इफ आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ टू कंपनीज, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी ए में वी हैव ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 30 डेज, कंपनी बी में वी हैव ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 60 डेज। तो अब आप लोग बोलोगे सर 30 दिन में पैसा वापस आ जाएगा कंपनी ए के केस में, 60 डेज में पैसा आएगा कंपनी बी के केस में। सर 30 डेज में पैसा आ गया वो बेटर है ना, एज कंपेयर टू वेटिंग फॉर 60 डेज, यस और नो? यस। सो लोअर द ऑपरेटिंग साइकिल द बेटर इट इज फॉर अस, बराबर। आई होप दैट पार्ट इज क्लियर। तो दोस्तों ये ऑपरेटिंग साइकिल का एक मीनिंग था, बट एज यू कैन सी आई हैव रिटन सो मेनी थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। अब ऑपरेटिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स होल्डिंग पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल में कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे? आई रिपीट, ऑपरेटिंग साइकिल में कौन से फैक्टर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे? तो दोस्तों ऑपरेटिंग साइकिल में देयर विल बी 5 फैक्टर्स व्हिच विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सबसे पहला है रॉ मटेरियल्स होल्डिंग पीरियड। सबसे पहला क्या है? रॉ मटेरियल्स होल्डिंग पीरियड। रॉ मटेरियल्स होल्डिंग पीरियड बढ़ गया तो ऑपरेटिंग साइकिल ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। Now what is raw materials holding period? Raw materials holding period is the time duration for which we hold raw materials. Work in progress conversion period. Work in progress conversion period is the time duration for which the work on raw materials is carried out to convert into finished goods. बराबर। raw materials holding period मेरे एग्जाम्पल में मैंने 10 डेज लिया, बराबर। वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड मेरे एग्जाम्पल में मैंने 14 डेज लिया। तो 10 डेज प्लस 14 डेज, दिस इज द लैग। मतलब ये अगर इतने ड्यूरेशन तक हमारे पास पैसा नहीं आएगा तो दैट विल बी अ लॉन्गर ड्यूरेशन, मतलब 10 डेज देन 14 डेज, तो 10 दिन तक तो पैसा अटकेगा, 14 डेज के लिए वापस और पैसा अटकेगा, राइट। सो 10 डेज प्लस 14 डेज, दिस इज द टोटल ड्यूरेशन टिल नाउ फॉर विच अवर मनी इज ब्लॉक्ड। नाउ फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड। अब जब भी दोस्तों फिनिश गुड्स बन गया तो क्या वो जरूरी है कि वो उसी दिन बेच देंगे? क्या वो जरूरी है जिस दिन हमने फिनिश गुड्स बना दिया उसी दिन बिक जाएगा क्या? द आंसर इज नो, इट विल टेक सम टाइम। सो दोस्तों फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड इज ऑल्सो अ डिले इन रिसीविंग पेमेंट बैक टू अस। तो फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड मेरे एग्जांपल में मैंने 10 डेज लिया, 12 डेज लिया है, बराबर। सो फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड इज 12 डेज एज ऑफ नाउ। So till now the delay in payment is of 10 plus 14 plus 12 days, बराबर। उसके बाद दोस्तों हमने जब भी वो गुड्स बेचा कस्टमर को, क्या कस्टमर उसी दिन पैसा दे देगा? ओके, assuming credit sales, तो कस्टमर will not make the payment on the same day. In my example I have considered 20 days के बाद वो कस्टमर पैसा देगा।
सो डोंट यू थिंक ये भी ड्यूरेशन जितना ज्यादा उतना पैसा लेट आएगा हमारे पास, बराबर। सो अगर ये 20 के जगह पे 30 होता तो इट विल टेक 30 डेज फॉर द कस्टमर्स टू मेक द पेमेंट। तो ऑफकोर्स कलेक्शन पीरियड जितना कम उतना अच्छा, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड जितना कम उतना अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड जितना कम उतना अच्छा, रॉ मटेरियल्स होल्डिंग पीरियड जितना कम उतना अच्छा, राइट। एंड क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड दोस्तों, दिस इज द टाइम पीरियड गिवन बाय द सप्लायर्स टू अस, उन्होंने हमको टाइम दिया है। तो ऑफ कोर्स ये तो जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना हमारे लिए अच्छा, क्योंकि देयर विल बी अ डिले इन पेमेंट फ्रॉम आवर साइड। अगर सप्लायर मेरे को 15 डेज का टाइम पीरियड देता है, अगर सप्लायर मेरे को 15 डेज का टाइम पीरियड देता है, दैट मींस आई गेट 15 डेज टू मेक द पेमेंट टू हिम। ये 15 के जगह पे अगर उसने 30 डेज का टाइम दिया ना तो मैं और खुश होऊंगा। क्यों? बिकॉज अगेन देयर विल बी अ डिले इन पेमेंट फ्रॉम माय साइड। मेरे को तो अच्छा ही है, मेरा कैश तो लेट बाहर जाएगा ना। I hope you are understanding. So, how do you calculate now operating cycle? The formula is very simple, that raw materials holding period plus the work in progress conversion period plus the finished goods holding period plus the collection period of the debtors or debtors collection period minus the creditors payment period. This is how you calculate your operating cycle. वो मैंने calculate भी किया है। 10 plus 14 gives you 24, 24 plus 12 gives you 36, 36 plus 20 will give you 56 and 56 minus 15 will give you 41 days, बराबर। So your operating cycle will be of 41 days. I hope this point is clear to all. ये दोस्तों हमारा अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल। यहाँ पे इफ यू कैन सी मैंने डायरेक्टली डेज का कैलकुलेशन दे दिया है, 10 डेज, 14 डेज, 12 डेज, 20 डेज, 15 डेज, बराबर। दिस इज ऑलरेडी गिवन टू यू, बट कभी कभी एग्जाम में दे कैन टेल यू टू कैलकुलेट एनी वन ऑफ दीज फैक्टर्स फॉर 1 मार्क। 1 मार्क का एमसीक्यू पूछ सकते हैं, कैलकुलेट द डेटर्स कलेक्शन पीरियड, कैलकुलेट द डब्ल्यूआईपी कन्वर्जन पीरियड। सॉरी ये कैलकुलेशन भी पूछ सकते हैं। ऑफ कोर्स इसके फॉर्मूला है दोस्तों, there are various formulae to calculate these particular factors. raw materials holding period calculate करने के लिए एक फॉर्मूला है, work in progress conversion period calculate करने के लिए एक फॉर्मूला है, finished goods holding period calculate करने के लिए भी फॉर्मूला है, debtors collection period के लिए भी फॉर्मूला है, and creditors payment period के लिए भी फॉर्मूला है। so all these 5 formulae goes without saying आपको याद होना चाहिए, goes without saying that आपको याद होना चाहिए, बराबर। तो चलिए शुरू करते हैं क्विक रिकैप ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूले ऑल्सो। हाउ डू यू कैलकुलेट रॉ मटेरियल्स होल्डिंग पीरियड? दोस्तों रॉ मटेरियल्स होल्डिंग पीरियड इज कैलकुलेटेड एज एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स डिवाइड बाय रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड इनटू या तो 365, या तो 360, या तो 52, या तो 12। अब सर ये सब क्या है 365, 360, 52, 12? दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा assume 360 days in a year, तो हम 360 assume करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन साइलेंट रहेगा and the information in the question will be given in days, तो हम 365 ले लेंगे। नॉर्मली तो 365 days in a year। ओके, कभी कभी क्वेश्चन का जो इंफॉर्मेशन होगा that will be in weeks, तो we will consider 52 weeks in a year। कभी कभी क्वेश्चन का जो इंफॉर्मेशन होगा that will give you in number of months, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। So I hope this 365, 360, 52 and 12 का फंडा क्लियर है, yes or no? 365 when the question is silent, information is in days. 360 if the question specifies, take 360 days in a year. 52 number of weeks in a year, 12 number of months in a year. I hope this part is clear, but formula भी याद रखना है, average stock of raw materials divided by raw materials consumed. Average stock of raw materials divided by raw materials consumed. I hope that is clear. How to calculate average stock? Opening plus closing divided by 2. Opening stock of raw materials plus closing stock of raw materials divided by 2. Okay, after that work in progress conversion period दोस्तों, work in progress conversion period is average stock of work in progress upon cost of production, बराबर, क्योंकि work in progress is produced in the end, तो we divided by cost of production। जैसे यहाँ पे raw materials are consumed, work in progress is produced and finished goods are sold, इसीलिए denominator I hope you can relate to this, okay? Work in progress conversion period is average stock of work in progress upon cost of production into again the same story 365, 360, 52, 12, बराबर। Finished goods holding period is average stock of finished goods upon cost of goods sold
इंटू 365, 360, 52, 12। सब मत ले लेना, कोई भी एक आएगा एग्जाम में ऑफकोर्स, 365 या तो 360 या तो 52 या तो 12। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। एंड हाउ टू कैलकुलेट एवरेज स्टॉक? एवरेज स्टॉक चाहे रॉ मटेरियल्स का हो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस का हो या फिर फिनिश गुड्स का हो, एवरेज विल बी ऑलवेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। चलो सर, इतना क्लियर हो गया। ओके, how to calculate debtors collection period? Debtors collection period is average debtors upon net credit sales into 365 or 360 or 52 or 12 बराबर। अगेन सर, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज डेटर्स? अरे बाबा, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइड बाय 2। आई होप दैट पार्ट इज क्लियर। एवरेज कभी भी कैलकुलेट करना है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। सर, द नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड को कैसे कैलकुलेट करना है? एवरेज क्रेडिटर्स अपॉन नेट क्रेडिट परचेसेस इनटू 365, 360, 52, 12 बराबर। ऑफ कोर्स चारों में से कोई भी एक, एज इट इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। हाउ टू कैलकुलेट एवरेज क्रेडिटर्स? ओपनिंग क्रेडिटर्स क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइड बाय 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। दोस्तों, विद दिस हमारा ऑपरेटिंग साइकिल का रिविजन भी खत्म हो जाता है। विद दिस हमारा ऑपरेटिंग साइकिल का रिविजन भी खत्म हो जाता है। 3 पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड ऑपरेटिंग साइकिल। All these 3 points are completed and now we start with the most critical point, that is estimation of working capital। काफी सारे points डिस्कस करेंगे इसमें। चलिए शुरू करते हैं estimation of working capital। Before we move on to the exact all the concepts involved, सबसे पहले एक इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है एंड हाउ टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल, उसका भी एक फॉर्मेट है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमको आता है बराबर। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमको आता है, दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो उसी का एक फॉर्मेट भी है, इट इज जस्ट अ सिंपल फॉर्मेट, यू विल अंडरस्टैंड व्हेन वी डिस्कस दैट। ओके, सबसे पहले शुरू करते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट दोस्तों आपको दिख रहा है, इट स्टार्ट्स विथ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड बराबर। कितना रॉ मटेरियल्स हमने एक साल में कंज्यूम किया, प्लस द डायरेक्ट लेबर प्लस द प्रोडक्शन ओवरहेड्स बराबर। ऑल दीज आर योर फैक्ट्री एक्सपेंसेस और यू कैन से फैक्ट्री कॉस्ट। रॉ मटेरियल्स, work in progress and production overheads totally come to factory cost। factory cost में you add your opening stock of WIP minus closing stock of WIP to get the cost of production बराबर। इतना goods हमने produce किया सर, इतना goods हमने produce किया। let us say, just to explain the concept, let us say आपने 100 units produce किया। कितना? 100 units produce किया बराबर। I am just explaining to you guys in number of units so that it becomes easy. Okay, let us say ये साल में हमने 100 units produce किया सर, लेकिन last year हमने 40 units already manufacture करके रखा था, but सिर्फ वो बिका नहीं था सर। तो manufactured but not sold is finished goods। manufactured but not sold is finished goods। yes or no? तो totally हम ये साल में कितने units बेच सकते हैं सर? करंट ईयर में आपने 100 यूनिट्स बनाया, 40 यूनिट्स तो लास्ट ईयर का ही पेंडिंग स्टॉक है विच इज नॉट येट सोल्ड। तो इन द करंट ईयर यू कैन टोटली सेल 140 यूनिट्स। 140 यूनिट्स कैन बी सोल्ड बराबर। लेकिन समझो अगर उसमें से एक एग्जांपल दूं, 30 यूनिट्स हमारे पास अभी भी स्टॉक में बचा है सर। इसमें से 30 यूनिट्स हमने अभी भी स्टॉक में रखा है, 30 यूनिट्स आर स्टिल नॉट सोल्ड। दैट मींस कैन आई से यू हैव सोल्ड 110 यूनिट्स। कैन आई से यू हैव सोल्ड 110 यूनिट्स। 100 यूनिट्स पहले से था, सॉरी 40 यूनिट्स पहले से था, 100 यूनिट्स आपने मैन्युफैक्चर किया, तो टोटल यूनिट्स विच कैन बी सोल्ड बिकेम 140। 30 यूनिट्स अभी भी बड़ा है, दैट मींस 110 यूनिट्स बैलेंस आपने बेच दिया है बराबर। सो नाउ यू अराइव एट कॉस्ट ऑफ गुड्स विच आर सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स विच आर सोल्ड। आफ्टर दैट, टू कॉस्ट ऑफ गुड्स विच आर सोल्ड, दिस इज द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द गुड्स विच आर सोल्ड। उसके अलावा भी तो खर्चे होते रहे, गुड्स पे तो खर्चा किया वो तो ठीक है, उसके अलावा भी तो कुछ खर्चे होंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, यस और नो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ऑल दीज यू विल एड बैक and you will come to cost of sales. All these you will add and you will come to cost of sales. Cost of sales is your total cost. Cost of sales is your total cost and cost of sales में simple profit add करो तो मिलेगा sales.
आई होप दिस इनकम स्टेटमेंट इज क्लियर टू यू गाइस. बराबर. क्विक रिकैप करते हैं. रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स विल गिव यू फैक्ट्री कॉस्ट. फैक्ट्री कॉस्ट में एट WIP ओपनिंग स्टॉक लेस WIP का क्लोजिंग स्टॉक विल गिव यू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में यू विल ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स टू अराइव एट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. Cost of goods sold में you add your office and admin expenses, you add your selling and distribution expenses to arrive at cost of sales. Cost of sales में add the profit, you arrive at sales. बराबर. ये था हमारा इनकम स्टेटमेंट दोस्तों. Now there is also a statement to estimate working capital. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, एक स्टेटमेंट है, एक फॉर्मेट है, बट ऑफ कोर्स वी हैव MCQs इन एग्जाम, राइट. तो हमको ये स्टेटमेंट से इतना मतलब नहीं है, ये फॉर्मेट याद रखने का इतना मतलब नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको पता है दैट our working capital is current assets minus current liabilities. Our working capital is current assets minus current liabilities. ये हमको पता है सर, ये हमको पता है. बराबर. तो आप ये फॉर्मेट में ना पढ़ो तो भी चलेगा. बराबर. क्योंकि हमको फॉर्मेट कभी ड्रॉ नहीं करना एग्जाम में, वी जस्ट हैव MCQs, राइट. तो चलो बट पढ़ लेते हैं एक बार. करंट असेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज एज यू कैन सी विल गिव यू द नेट वर्किंग कैपिटल. बराबर. आप अगर नोटिस करो तो करंट असेट्स का टोटल मैंने ग्रीन कलर में लिखा है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. डू यू गाइज अग्री? हमने अभी ऊपर रिवाइज किया था टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, उसमें सबसे पहले था ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. तभी आई टोल्ड यू ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज द टोटल ऑफ करंट असेट्स. तो दोस्तों करंट असेट्स का टोटल इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, उसमें से करंट लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो मिलेगा नेट वर्किंग कैपिटल. इज दिस मच क्लियर? यस और नो? यस. ओके. अब दोस्तों शुरू करते हैं करंट असेट्स. करंट असेट्स में क्या क्या आता है सर? सबसे पहले स्टॉक. सबसे पहले स्टॉक या तो इन्वेंट्री बोलो. इन्वेंट्री भी तीन टाइप का होता है, रॉ मटेरियल्स, बराबर, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स. रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स. उसके बाद डेटर्स आर अनदर टाइप ऑफ करंट असेट्स, कैश एंड बैंक बैलेंसेस. कैश एंड बैंक बैलेंसेस. उसके बाद यू हैव अदर करंट असेट्स. इसके अलावा जितने भी करंट असेट्स है ना, ये सब मैंने अदर करंट असेट्स के कैटेगरी में डाल दिया. बराबर. तो ये सब को ऐड करके थर्ड कॉलम में यू विल गेट योर फाइनल ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल टोटल ऑफ करंट असेट्स. इसमें से सर हम माइनस करेंगे करंट लायबिलिटीज को. करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा रे? करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा? करंट लायबिलिटीज में यू विल हैव क्रेडिटर्स और अदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एंड बाकी सारी करंट लायबिलिटीज को मैंने अदर करंट लायबिलिटीज मान लिया. बराबर. बिल्स पेएबल एक्सेट्रा. ओके. तो ऑल दीज आर करंट लायबिलिटीज, एंड वही करंट असेट्स में से अगर यही करंट लायबिलिटीज का टोटल माइनस करेंगे तो जो बचेगा दोस्तों दैट इज कॉल्ड एज नेट वर्किंग कैपिटल. दैट इज कॉल्ड एज नेट वर्किंग कैपिटल. इज दिस मच क्लियर? बराबर. तो ये तो एक्चुअल फॉर्मेट है, बट कभी कभी है ना दोस्तों क्वेश्चन में दे विल स्पेसिफाई दैट यू ऐड, क्वेश्चन में समटाइम्स दे विल स्पेसिफाई ऐड सेफ्टी मार्जिन. है ये क्या है सर? व्हाट इज सेफ्टी मार्जिन? दोस्तों सेफ्टी मार्जिन इज जस्ट लाइक टू प्ले सेफ. मतलब सर देखो कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, लेट अस से हमारा नेट वर्किंग कैपिटल का आंसर आया 4 लाख. एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं. 4 लाख का नेट वर्किंग कैपिटल आया. कितना? 4 लाख का नेट वर्किंग कैपिटल आया. हमारा एग्जांपल है. ओके. नाउ इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंपनी को डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए अपने पॉकेट से 4 लाख रुपीस इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तभी ही कंपनी नॉर्मली चल पाएगा, बिकॉज 4 लाख इज द वर्किंग कैपिटल. यस और नो? नाउ अगर कंपनी 4 लाख एग्जैक्ट मेंटेन करता है, और समझो अगर हमारा एस्टीमेट कोई भी एक फैक्टर में गलत हो गया किधर, तो डोंट यू थिंक मेंटेनिंग एग्जैक्टली 4 lakhs वुड बी रिस्की? यस और नो? मेंटेनिंग एग्जैक्टली 4 lakhs वुड बी रिस्की. फॉर एग्जांपल मेरे डेटर्स का वैल्यू आया 1 लाख, मतलब डेटर्स से हमको 1 लाख मिलने वाला था. बराबर. बट एक्चुअली डेटर्स पेड ओनली 80,000. तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग 1 लाख फ्रॉम डेटर्स, बट दे पेड अ पेमेंट ऑफ ओनली 80,000. खत्म ना? तो खत्म. यस और नो? पूरा ऑर्केस्ट्रा बज गया एक साथ. यस और नो? बिकॉज यू विल नॉट हैव दैट 20,000 एक्स्ट्रा. वो 20,000 के लिए प्रॉब्लम हो गया. तो सर इधर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? इसीलिए द कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी मार्जिन कम्स इनटू पिक्चर. लेट अस से सेफ्टी मार्जिन इज 10%. तो मतलब क्या होगा,
हमारा आंसर आ रहा है 4 lakhs, बट हम 4 lakhs मेंटेन नहीं करेंगे. Our final net working capital will be including that 10% extra because we want to be safe. Because we want to be safe. We don't want any kind of risk. तो क्या करेंगे, 4 लाख का वर्किंग कैपिटल आया, उसमें 40,000 ऐड कर देंगे. 40,000 किधर से आया, 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल. तो 10% 40,000 उसमें ऐड करके, सर वी विल ऑलवेज मेंटेन इन द बिजनेस 4,40,000. हमें 4 लाख की ही जरूरत है, बट वी वांट टू प्ले सेफ, इसीलिए हम सेफ्टी मार्जिन को ऐड कर देंगे. आई होप दिस डिस्कशन इज क्लियर. बराबर. बट अब ये जितना आपको दिख रहा है ये उतना इजी नहीं है, काफी सारे पॉइंट्स दोस्तों डिस्कस करने हैं. बराबर. अजम्पशंस है, वो अजम्पशंस डिस्कस करेंगे. देयर आर 2 मेथड्स टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल, वो भी डिस्कस करेंगे. ऑल्सो देयर आर हाउ टू एस्टिमेट, ओके, हाउ टू एस्टिमेट द वर्किंग कैपिटल, उसके लिए कुछ वैल्यूएशन समरी जैसा भी है, तो ये भी डिस्कस करेंगे. एंड देन वी विल बी डन विथ वर्किंग कैपिटल. उसके बाद कुछ वैल्यूएशन समरी है जो हम डिस्कस करेंगे. बराबर. तो वैल्यूएशन समरी खत्म करने के बाद हमारा ये पॉइंट खत्म हो जाएगा. वैल्यूएशन समरी डिस्कस करने के बाद हमारा एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल वाला पॉइंट दोस्तों खत्म हो जाएगा. चलिए तो डिस्कस करते हैं कुछ अजम्पशंस. बराबर. अब टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल, दोस्तों ये हमेशा एक एस्टिमेट होता है. कोई भी कंपनी गारंटी के साथ ये नहीं बोल सकता कि मेरे को बिजनेस चलाने के लिए इतना ही पैसा चाहिए. नो कंपनी कैन गारंटी दैट कि यार इतना ही पैसा हमें चाहिए. बराबर. दैट इज ऑलवेज एन एस्टिमेट. दैट इज ऑलवेज एन एस्टिमेट. चलो ठीक है सर, एस्टिमेट वगैरह सब हमको समझा, बट दोस्तों कभी भी आप कुछ भी एस्टिमेट करोगे देयर कैन बी सम अजम्पशंस आल्सो. नाउ व्हाट अजम्पशंस आर टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल फ्रॉम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू. दीज आर द अजम्पशंस. चलो देखते हैं क्या क्या अजम्पशंस है. ओके. First assumption is all the operating activities accrue evenly during the period. Accrue evenly during the period. मतलब production, sales, etc. cost जो incur होता है that accrues evenly during the period. मतलब सर अगर मैं बताऊं that पूरे साल में raw materials consumed 12 लाख है, तो 3 महीने का कितना. बराबर. So now टेक्निकली अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखो तो हो सकता है पूरे साल का रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड 12 लाख है. दैट डज नॉट मीन कि एवरी मंथ का 1 लाख ही है. दैट डज नॉट मीन इन प्रैक्टिकल लाइफ दैट एवरी मंथ का 1 लाख है. हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बट पॉसिबिलिटी बहुत कम है. हो सकता है पहले महीने में 2 लाख हो, दूसरे महीने में कुछ ना हो, तीसरे महीने में 4 लाख हो, चौथे महीने में 1 लाख हो, 5वें महीने में 50,000 हो, कुछ भी हो सकता है. द टोटल रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड इन 1 फुल ईयर इज 12 lakhs. मैंने ये इंफॉर्मेशन दिया. बट यहां पे when we estimate working capital, we will always assume that these activities accrue evenly during the period. मतलब हम ये assume करेंगे, अगर पूरे साल का 12 लाख है तो हम ये assume करेंगे कि हर एक महीने का 1-1 लाख है. We will assume that every month में we are consuming raw materials. बराबर. We are consuming raw materials of rupees 1 lakh each. Is this part clear? ये first assumption है हमारा. दूसरा assumption and तीसरा assumption is somewhere related to each other. Second and third assumption is related to each other दोस्तों. चलिए शुरू करते हैं second assumption पहले. In absence of information, okay, with respect to opening stock, it is assumed to be the same as closing stock. सर इसका मतलब क्या हो गया. बराबर. अब दोस्तों ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी आपको दिख रहा होगा. यस और नो. हाँ सर दिख रहा है. मतलब अगर ओपनिंग स्टॉक रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया, आई रिपीट, अगर ओपनिंग स्टॉक इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, then opening stock is assumed to be the same as closing stock. Opening stock is assumed to be the same as closing stock. ठीक है सर, ये समझा. बट इससे होगा क्या दोस्तों, इससे क्या होगा ये समझना ही तो मेन टास्क है. इससे क्या होगा ये समझना ही तो मेन टास्क है रे. चलो देखते हैं इससे क्या होगा. लेट अस से दोस्तों, मैं अगर यही पार्ट में एक्सप्लेन करूं तो लेट अस से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 1 लाख रुपीस. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था दोस्तों, 1 लाख. एग्जांपल ले रहे, एक रैंडम एग्जांपल ले रहे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ओके सर इतना समझा. अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1 लाख है, ठीक है, लेट अस से द ओपनिंग स्टॉक इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन स्पेसिफाइज क्लोजिंग स्टॉक टू बी 20,000. क्लोजिंग स्टॉक तो माइनस करना है, इसलिए मैंने -20,000 लिखा. ओके तो सर अभी इतना हमको समझा.
मतलब आप ये कहना चाहते हो सर कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1 लाख, हाँ, क्लोजिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन दिया है 20,000, ओपनिंग स्टॉक के बारे में कुछ भी नहीं बोला। तो दोस्तों जब कुछ भी नहीं बोला होता ना, जब कुछ भी नहीं बोला होता, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, वी अज्यूम द ओपनिंग स्टॉक टू बी द सेम एज क्लोजिंग स्टॉक। सर मतलब ये भी 20,000, हाँ दोस्तों ये भी 20,000। तो इससे क्या होगा सर? कैन आई कंक्लूड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विल ऑल्सो बी ₹1 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विल ऑल्सो बी ₹1 लाख। हाँ सर, तो अरे अगर ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड सेम है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज सेम एज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यही तो समझना है, बराबर। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सेम होगा तो cost of production will be equal to cost of goods sold if there is no information with respect to opening stock given in the question. तो raw materials consumed will be equal to raw materials purchases, ये मैं explain करूंगा in the third point. Factory cost will be equal to cost of production, यहाँ पे ध्यान दो, factory cost अगर ये दोनों सेम है तो एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, तो कहना ही से वो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा अपने आप, फैक्ट्री कॉस्ट विल बिकम इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिमिलरली दिस कॉस्ट ऑफ, अगर फिनिश गुड्स की बात करें तो दिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बिकम इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो तो हमने एग्जांपल में भी देख लिया। तो कैन आई कंक्लूड ऑल दीज पॉइंट्स, बराबर फैक्ट्री कॉस्ट विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बिकम इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एंड पहला वाला भी दोस्तों, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड आप कैसे कैलकुलेट करते हो, देखो रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड आप कैसे कैलकुलेट करते हो, थर्ड में फर्स्ट पॉइंट देखो, raw materials consumed is opening stock of raw materials plus purchases minus closing stock of raw materials। तो अगर opening stock का इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो क्लोजिंग एंड ओपनिंग दोनों सेम, तो एक माइनस हो जाएगा एक प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल होके बचेगा रॉ मटेरियल्स परचेसेस। तो कैन आई से इन दैट केस रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड will become equal to raw materials purchases, raw materials consumed will be equal to raw materials purchases। सर समझा, बराबर। बट इफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक सेम नहीं है, मतलब क्वेश्चन बोलता है कि देख ओपनिंग स्टॉक ये, क्वेश्चन बोलता है कि देख क्लोजिंग स्टॉक ये, तो दोस्तों अगर सेम नहीं है तो हाउ टू कैलकुलेट दीज फैक्टर्स। सेम है तो टेंशन नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, अगर दोनों सेम है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वही होगा, फैक्ट्री कॉस्ट। अगर दोनों सेम है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओनली। बट सर अगर सेम नहीं है तो हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। रॉ मटेरियल्स कंज्यूम वाला पॉइंट तो डिस्कस हो चुका है। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी इक्वल टू द सेम कॉन्सेप्ट, ओपनिंग स्टॉक प्लस फैक्ट्री कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बराबर। ओपनिंग प्लस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक विल गिव यू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसका, WIP का स्टॉक। एंड वैसे ही फिनिश गुड्स का स्टॉक कंसीडर करोगे तो आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विल बी इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल? यस। इसी से हमारे सारे असम्पशंस खत्म हो जाते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इन सिंपल टर्म्स। अगर ये सबको कंक्लूड करना है ना तो दोस्तों इन सिंपल टर्म्स, अगर ओपनिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक सेम, बराबर। एंड अगर वो सेम तो उसको इग्नोर ही कर देंगे, तो रॉ मटेरियल्स परचेज विल बी इक्वल टू रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड इटसेल्फ, बराबर। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी इक्वल टू द फैक्ट्री कॉस्ट इटसेल्फ, फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इटसेल्फ, बराबर। लेकिन अगर वो सेम नहीं है तो कैलकुलेट करेंगे, रॉ मटेरियल्स परचेसेस, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड विल बी इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP प्लस फैक्ट्री कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बराबर। ये और ये पॉइंट तो इनकम स्टेटमेंट ही तो है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज व्हाट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP प्लस फैक्ट्री कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर सेम नहीं है तो कैलकुलेट कर लो ऐसे, अगर सेम है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम है, तो फैक्ट्री कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर दोस्तों, बराबर। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड all the assumptions and now we move on to the next discussion point, that is methods to estimate working capital, methods to estimate working capital। चलिए देखते हैं कौन से methods हैं।
ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन वी एस्टिमेट द वर्किंग कैपिटल, बराबर, ये जब हम एस्टिमेट करते हैं वर्किंग कैपिटल को, तो देयर आर टू मेथड्स इन विच यू कैन एस्टिमेट द सेम। देयर आर टू मेथड्स इन विच यू कैन एस्टिमेट द सेम। पहला वाला है कैश कॉस्ट मेथड, पहला वाला है कैश कॉस्ट मेथड, एंड दूसरा वाला है टोटल मेथड, बराबर। दोनों में डिफरेंस क्या है मैंने लिखा है, बराबर। टोटल मेथड मतलब टोटल, टोटल मेथड मतलब टोटल, सर मतलब दोस्तों टोटल मेथड में एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। मतलब अगर बाई चांस कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ दिया है, जो भी है, मतलब वो सबको कंसिडर करके टोटल अप्रोच, मतलब यू विल कंसिडर एवरीथिंग। तो सर कैश कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? सुनो दोस्तों, कैश कॉस्ट मेथड इज अ लॉजिकल मेथड। कैश कॉस्ट मेथड बोलता है कि डेप्रिसिएशन and other non-cash items will not form a part of cost of production। सर मतलब दोस्तों एक चीज सोच के बताओ, डेप्रिसिएशन जब चार्ज करते हैं तब क्या कोई कैश पेमेंट होता है? देखो सैलरीज जब हम पे करते हैं, मतलब सैलरीज जब हम इनकर करते हैं तो सैलरी पे भी होता है, कैश बाहर जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सैलरीज। बट टॉक अबाउट डेप्रिसिएशन, जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो क्या कैश बाहर जा रहा है? नो, कैश डज नॉट गो आउट। डू यू गाइस एग्री विद दैट? यस। तो दोस्तों कैश कॉस्ट मेथड बोलता है दैट ओनली कैश एक्सपेंसेस आर योर एक्सपेंसेस, ओनली कैश एक्सपेंसेस आर योर एक्सपेंसेस। मतलब नॉन कैश आइटम्स लाइक डेप्रिसिएशन विल बी एक्सक्लूडेड, उसको हम खर्चा ही नहीं मानेंगे, उसको हम खर्चा ही नहीं मानेंगे। Depreciation and other non-cash items do not form a part of cost of production. Depreciation and other non-cash items do not form a part of cost of production. जबकि यहाँ पे देखो टोटल में डेप्रिसिएशन हो कि कोई भी खर्चा हो, that is to be included or that is to form a part of cost of production. कैश कॉस्ट लॉजिकल है ना। कैश कॉस्ट बोलता है देखो आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है? वही पैसा जो मेरे को मेरे जेब से इन्वेस्ट करना है टू रन द बिजनेस सक्सेसफुली। हाँ, तो क्या डेप्रिसिएशन जरूरी है? क्या डेप्रिसिएशन के लिए आपको पैसा चाहिए, कैश चाहिए? नहीं 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 नहीं, बस तो डेप्रिसिएशन के लिए कैश नहीं चाहिए तो उसको एक्सक्लूड कर दो। तो डेप्रिसिएशन डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंड अंडर कैश कॉस्ट मेथड दोस्तों डेटर्स आर टू बी वैल्यूड ऑन टोटल कॉस्ट इंस्टेड ऑफ सेल्स। डेटर्स आर टू बी वैल्यूड ऑन टोटल कॉस्ट इंस्टेड ऑफ सेल्स। सर मतलब दोस्तों यहां पे ध्यान दो, ये है हमारा टोटल कॉस्ट। अब डेटर्स आर टू बी वैल्यूड ऑन टोटल कॉस्ट इन कैश कॉस्ट अप्रोच एंड डेटर्स विल बी वैल्यूड ऑन सेल्स इन टोटल मेथड। टोटल मतलब तो टोटल ही कंसिडर करेगा, गुड्स बेचा डेटर को तो ठीक है, तो debtors should be valued on sales because that is the sale made to the debtor. Simple logic, total approach. Cash cost approach बोलता है that वो profit is something extra that you earn. उसके लिए आपको आपके जेब से पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको आपके जेब से पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो you will not value debtors including that profit. You will value debtors excluding that profit, meaning debtors will be valued on total cost, meaning debtors will be valued on total cost. I hope this point is clear my dear friends, and accordingly these are the two methods. To conclude the two methods, cash cost, total. Cash cost में depreciation is excluded from the cost of production, total में depreciation non cash item जितना भी है everything forms a part of cost of production. Cash cost में debtors are valued on total cost and total में debtors are valued on sales. I hope this point is clear. With this we finish methods to estimate working capital, and the last part in estimation of working capital is this valuation summary. दोस्तों अगर हम points to be discussed देखें, जो मैंने starting में बताया था आपको, उसमें 6 points है। We are on the 4th point and 4th point का ये last discussion है। इसके बाद 5th point and 6th point and then we wind up the chapter. तो चलिए वैल्यूएशन समरी क्या है सर? ये वैल्यूएशन समरी क्या है? वैल्यूएशन समरी इज अ समरी ऑफ हाउ टू वैल्यू ईच एंड एवरी आइटम ऑफ योर वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। ये वैल्यूएशन समरी क्या है? हाउ टू वैल्यू
ईच एंड एवरी आइटम ऑफ योर एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। वर्किंग कैपिटल अगर आपको एस्टिमेट करना है तो उसमें आएगा रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, WIP इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। तो उसको सर हम कैसे वैल्यू करेंगे, हाउ आर वी गोइंग टू वैल्यू दैट, वो कैसे एस्टिमेट करना, इज दिस वैल्यूएशन समरी। बराबर। अब वैल्यूएशन समरी में इट इज द फर्स्ट पॉइंट इज वेरी सिंपल, रॉ मटेरियल स्टॉक। ओके, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। अगर आप करंट असेट्स याद करो, करंट असेट्स में सबसे पहले लिखा था इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में सबसे पहले लिखा था रॉ मटेरियल्स। तो इफ you are supposed to value raw materials का stock, raw material stock is to be valued on the basis of raw materials consumed. Very simple, valued on the basis of raw materials consumed. Work in progress, इसको कैसे वैल्यू करना है सर, इसको किसके बेसिस पे वैल्यू करना है? अच्छा सर, बाय द वे ये वैल्यूएशन मतलब क्या दोस्तों, रॉ मटेरियल का स्टॉक, सी आई एम नॉट शोइंग यू द कैलकुलेशन, okay, revision video hai, we are not just going into the depth of every calculations, but of course we are just quickly revising the concept. अभी ध्यान दो कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, ये वैल्यू जानना है ना, we are supposed to estimate the value of raw materials, तो raw materials will be valued on the basis of raw materials consumed. Let us say पूरे साल में raw materials consumed is 72 lakhs, पूरे साल में raw materials consumed is 72 lakhs, बराबर, पूरे साल का रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड इज 72 lakhs. लेट अस से द रॉ मटेरियल्स होल्डिंग पीरियड, द रॉ मटेरियल्स होल्डिंग पीरियड इज 3 months, रॉ मटेरियल्स होल्डिंग पीरियड 3 months है। तो सर इसका मतलब क्या, तो दोस्तों ये रॉ मटेरियल स्टॉक कितने वैल्यू का होगा, दिस विल बी वैल्यूड एट 72 lakhs. raw materials consumed, raw material stock will be valued on raw materials consumed, raw materials consumed for full year is 72 lakhs. बट हमारे पास तो स्टॉक में raw material holding period, we hold the raw material sir for 3 months, so don't you think raw material stock will be for only 3 months, that is 72 lakhs into 3 by 12, barabar, the answer will be 18 lakhs. So 18 lakhs will be your valuation of raw material inventory. ऐसे ही आप हर एक फैक्टर को वैल्यू करोगे, ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया सो दैट हाउ टू वैल्यू, जब मैं बोलता हूं दैट रॉ मटेरियल स्टॉक इज वैल्यूड ऑन रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, तो कैसे वैल्यू करना है, दिस इज द वे, क्वेश्चन विल स्पेसिफाई 3 months, बराबर, मैंने इंफॉर्मेशन मंथ्स में दिया है। ओके चलो, तो कंसिडरिंग दिस पार्ट दोस्तों, अब लेट अस मूव ऑन फर्दर टू द वैल्यूएशन समरी। बराबर, कौन सा फैक्टर वैल्यू करना है, रॉ मटेरियल स्टॉक, तो रॉ मटेरियल का स्टॉक विल बी वैल्यूड ऑन रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, बराबर। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट, ये अच्छे से सुनना दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाउ टू वैल्यू WIP स्टॉक, अब WIP इज द वर्क इन प्रोग्रेस, इस पे काम खत्म नहीं हुआ लेकिन काम शुरू नहीं हुआ वैसा भी नहीं है, काम शुरू हो चुका है बट खत्म नहीं हुआ है, बराबर, काम शुरू नहीं हुआ ऐसा नहीं है, काम शुरू हो चुका है। ओके तो सर अब क्या करने का, हाउ टू वैल्यू WIP स्टॉक, दोस्तों बिकॉज यहाँ पे काम शुरू हो चुका है, रॉ मटेरियल्स के बाद वाला स्टेज है, तो वी विल वैल्यू WIP ऑन 100% ऑफ रॉ मटेरियल्स, क्योंकि रॉ मटेरियल के बाद वाला स्टेज है तो रॉ मटेरियल तक तो सब खर्चा इंक्लूड करेंगे, दैट इज 100% ऑफ रॉ मटेरियल्स। एंड इफ द कंप्लीशन स्टेज इज नॉट स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, कुछ नहीं बोला WIP के लिए, कुछ नहीं बोला, तो इट इज ऑलवेज 50% ऑफ लेबर एंड 50% ऑफ ओवरहेड्स, ऑलवेज 50% ऑफ लेबर एंड 50% ऑफ ओवरहेड्स, अज्यूमिंग आधा काम हो चुका है आधा काम बाकी है। सिंपल लॉजिक लगाओ दोस्तों, अगर क्वेश्चन नहीं बोलता कि ये WIP पे कितना काम हो चुका है, कुछ भी नहीं बोला, तो वी विल अज्यूम आधा हो चुका है आधा नहीं हुआ, तो हाफ विच इज डन दैट शुड बी इंक्लूडेड, मतलब 50% ऑफ लेबर वर्क इज डन, 50% ऑफ ओवरहेड्स आर आल्सो इंक्लूडेड और इनकर्ड, एंड हेंस यू विल वैल्यू योर WIP स्टॉक at 100% of raw materials plus half of labor, half of overheads. Is this part clear? लेकिन सर अगर क्वेश्चन में कंप्लीशन स्टेज स्पेसिफाई किया है तो क्या करेंगे सर, अगर क्वेश्चन में बोल दिया है कि WIP is 75% कंप्लीट, हाँ तो 75% ले लो, 75% ऑफ लेबर एंड 75% ऑफ ओवरहेड्स, लेकिन रॉ मटेरियल्स 100% ही लेंगे। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल्स तक सब खर्चा हो चुका है तभी तो WIP हुआ है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस दोस्तों, लॉजिक से समझो दैट वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या, WIP इस पे काम शुरू हो चुका है, वो रॉ मटेरियल नहीं रहा, तो रॉ मटेरियल तक तो सब कुछ हो चुका है ना, रॉ मटेरियल के स्टेज तक एवरीथिंग इज डन एंड हेंस 100% ऑफ रॉ मटेरियल्स इज टू बी इंक्लूडेड व्हाइल वैल्यूइंग WIP। हाँ इस पे काम चालू है, इस पे प्रोडक्शन ओवरहेड्स कुछ पार्ट ही लगा होगा,
लेबर ने भी कंप्लीट नहीं किया, इसीलिए लेबर एक्सपेंसेस भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट ही लगेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट तो आधा कंप्लीट आधा पेंडिंग। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाइज द कंप्लीशन स्टेज तो अगर क्वेश्चन स्पेसिफाइज द कंप्लीशन स्टेज तो क्या, तो जो भी क्वेश्चन में कंप्लीशन स्टेज लिया है ये परसेंटेज उसके बेसिस पे आ जाएगा। अगर 75% है तो 75% ऑफ लेबर, 75% ऑफ ओवरहेड्स, बट इट विल ऑलवेज रिमेन 100% ऑफ रॉ मटेरियल्स। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। मैंने नोट भी दे दिया है नीचे, व्हेन नो कंप्लीशन स्टेज इज गिवन इन द क्वेश्चन that is 50% जैसे मैंने लिखा है। However, if the completion stage is given in the question, then that percentage is to be applied on labor and overheads. I hope this point is clear दोस्तों। चलो उसके बाद अब फिनिश गुड्स है। फिनिश गुड्स तक तो सब खर्चे हो गए, that is total cost of production। रॉ मटेरियल्स भी खत्म, लेबर भी खत्म एंड ओवरहेड्स भी खत्म, सब कुछ है ना, तो दैट विल बी वैल्यूड ऑन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिनिश गुड्स आर प्रोड्यूस, तो वो प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी अब तक कॉस्ट इनकर किया, एवरीथिंग यू विल कंसीडर, दैट इज फिनिश गुड्स विल बी वैल्यूड ऑन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद डेटर्स। डेटर्स विल बी वैल्यूड ऑन सेल्स या तो टोटल कॉस्ट, सेल्स इन टोटल मेथड, टोटल कॉस्ट इन कैश कॉस्ट अप्रोच। बराबर, ये क्या है सर, ऊपर वाला पॉइंट। कैश कॉस्ट मेथड में डेटर्स आर वैल्यूड ऑन टोटल कॉस्ट एंड टोटल मेथड में डेटर्स आर वैल्यूड ऑन सेल्स। तो सर सिमिलरली सेल्स डेटर्स विल बी वैल्यूड ऑन सेल्स अंडर टोटल मेथड, बराबर डेटर्स विल बी वैल्यूड ऑन टोटल कॉस्ट अंडर कैश कॉस्ट अप्रोच। इज दिस पार्ट क्लियर? उसके बाद क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स दोस्तों आर टू बी वैल्यूड ऑन रॉ मटेरियल्स परचेजेस। सिंपल है, हम क्रेडिटर्स से रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, ओके, क्रेडिटर्स से रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, तो क्रेडिटर्स विल बी वैल्यूड ऑन द रॉ मटेरियल्स परचेजेस। इधर एक पॉइंट ध्यान रखना दोस्तों, रॉ मटेरियल का स्टॉक इज रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, क्रेडिटर्स आर रॉ मटेरियल्स परचेजेस, बराबर। हाँ तो सर इसमें कौन सा पॉइंट है, यहां पे देखो जरा, अगर ओपनिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो मेरा रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड विल इटसेल्फ बी रॉ मटेरियल्स परचेस। लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिया है एंड दोनों अलग है, तो हमें रॉ मटेरियल्स परचेसेस कैलकुलेट करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल परचेस कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला। रॉ मटेरियल्स कंज्यूम तो आपको इनकम स्टेटमेंट से ही मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन दिया है एंड दोनों अलग है, तो रॉ मटेरियल्स परचेस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। दोस्तों एक पॉइंट जो कॉमन मिस्टेक है that students do is calculate the creditors also on raw materials consumed. That will be the case अगर opening and closing stock same है तो definitely raw materials purchases will be equal to raw materials consumed, तब आप बिंदास ले लो। लेकिन अगर opening stock and closing stock of raw materials are different तो you will have to calculate raw materials purchases। और वो different कब होगा, इंस्टीट्यूट घुमाता है, इंस्टीट्यूट घुमाएगा आपको, क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा a newly started company has this much amount of closing stock and this much amount of raw materials consumed, please value creditors। तो क्या करोगे, अब हमको तो दिया है, अब आप क्या सोचोगे, वाओ क्लोजिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन दिया है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया है, ओपनिंग स्टॉक के बारे में किधर कुछ बोला ही नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक सेम। सर आपने ही तो बताया था दैट इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग स्टॉक तब क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक सेम। सर तब तो ये सेम ही है, तो मतलब रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड विल इटसेल्फ बी रॉ मटेरियल्स परचेज, तो आप सीधा वो कंज्यूम का ले लोगे परसेंटेज, बराबर ले लोगे जो भी प्रपोर्शन है वो, एंड यू विल से दैट क्रेडिटर्स का इतना। और दोस्तों बिलीव मी ऐसे करके आपको जो भी आंसर आया है ना वो ऑप्शन में स्पेसिफाई होगा, आपको लगेगा वाओ मेरे को आंसर मिल चुका है। विकेट गया है, विकेट। सर कैसे, अरे क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है और न्यूली स्टार्टेड कंपनी, न्यूली स्टार्टेड कंपनी में हमेशा ओपनिंग स्टॉक होता है जीरो, ओपनिंग स्टॉक इज ऑलवेज जीरो फॉर अ न्यूली स्टार्टेड कंपनी। कंपनी ने अभी जन्म लिया है तो रॉ मटेरियल पिछले साल का है किधर, अरे अभी जन्म लिया है, मतलब रॉ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स शुड हैव बीन अज्यूम्ड जीरो, जीरो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम भी दिया है तो मिलेगा रॉ मटेरियल्स परचेसेस।
एंड वो रॉ मटेरियल्स परचेजेस यूज करके आपको कैलकुलेट करना है क्रेडिटर्स। दोस्तों ये एक पॉइंट है जहां पे बहुत कॉमन मिस्टेक होता है, सो प्लीज 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 बी केयरफुल विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। ओके, क्रेडिटर्स हो चुका है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सिंपल है, आउटस्टैंडिंग वेजेस बोला तो दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस मतलब जो भी पूरे साल का वेजेस है उसका प्रपोर्शन ले लेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फिर आउटस्टैंडिंग दूसरा कोई एक्सपेंस बोला लाइक आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, तो अकॉर्डिंगली उसका आउटस्टैंडिंग वाला परसेंटेज विल बी वैल्यूड ऑन दैट पर्टिकुलर ओवरहेड्स। Okay, percentage नहीं proportion. Okay, now so that is all with respect to the valuation of the first 6 points दोस्तों। उसके बाद नोट, ये जो भी हमने डिस्कस किया है, ये जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, अगर कैश कॉस्ट मेथड से आप वैल्यू कर रहे हो तो डेप्रीसिएशन विल बी एक्सक्लूडेड, अगर आप टोटल अप्रोच से वैल्यू कर रहे हो तो डेप्रीसिएशन विल बी इंक्लूडेड। सर मतलब दोस्तों यहाँ पे भी अगर आप ध्यान देखो, फिनिश गुड स्टॉक में मैंने लिखा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिनिश गुड स्टॉक विल बी वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर अगर हम कैश कॉस्ट अप्रोच फॉलो कर रहे हैं ना, तो क्या टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वी विल इंक्लूड डेप्रीसिएशन? द आंसर इज नो, क्योंकि कैश कॉस्ट अप्रोच क्लियरली सेज डेप्रीसिएशन विल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डेप्रीसिएशन शुड बी एक्सक्लूडेड। आई होप दैट इज क्लियर। बराबर, तो ये जो भी आइटम्स है, बराबर, ये जो भी आइटम्स है इसमें से डेप्रीसिएशन विल बी एक्सक्लूडेड इफ इट इज कैश कॉस्ट अप्रोच, डेप्रीसिएशन विल बी इंक्लूडेड इफ इट इज टोटल अप्रोच। इज दिस क्लियर? यस और नो? यस, ओके। चलो, तो कंसिडरिंग दिस दोस्तों वी आर डन विद द फोर्थ पॉइंट ऑल्सो, we are done with the fourth point of our point of discussion, that is estimation of working capital। अब लास्ट दो छोटे छोटे पॉइंट्स पेंडिंग है, बराबर, इस पे एमसीक्यू पूछ सकते हैं इंस्टीट्यूट एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑल्सो। चलिए दो पॉइंट्स खत्म करते हैं एंड देन वी विल बी डन विद द सेकंड चैप्टर ऑल्सो। आइए आइए आइए, करंट असेट पॉलिसीज। ओके, करंट असेट पॉलिसीज। नाउ टू मेंटेन करंट असेट्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिसीज। करंट असेट कितना मेंटेन करेगा एक कंपनी सर, उसका 3 टाइप ऑफ पॉलिसीज होता है। फर्स्ट पॉलिसी इज कॉल्ड एज एन अग्रेसिव पॉलिसी और यू कैन से एन अग्रेसिव अप्रोच, सेकंड इज अ मॉडरेट वन एंड थर्ड वन इज कंजर्वेटिव अप्रोच। तीसरा क्या है दोस्तों? कंजर्वेटिव अप्रोच। चलो, तो लेट अस अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल दीज 3। अग्रेसिव मतलब क्या? अग्रेसिव मतलब दोस्तों लेवल ऑफ करंट असेट्स मेंटेन्ड अंडर अग्रेसिव अप्रोच इज वेरी लेस, बराबर। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से करंट लायबिलिटी है हमारा 1 लाख, तो हम जो करंट असेट्स मेंटेन करेंगे ना दैट विल बी समवेयर क्लोजर टू 1 लाख या 1,05,000 या 1,10,000, बराबर। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं दोस्तों, बराबर। तो 1 लाख के करंट लायबिलिटी के सामने 1,10,000 का करंट असेट। अरे सर अगर कंपनी के पास 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, उसमें सिर्फ 1,10,000 क्यों मेंटेन कर रहा है करंट असेट? क्योंकि बैलेंस है ना, बैलेंस, वो कंपनी को 8,90,000 किधर और इन्वेस्ट करना है, इन अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, इन अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। वाओ, मतलब सर ये कंपनी, अगर कंपनी के पास 10 लाख रुपए है, कंपनी का करंट लायबिलिटी 1 लाख रुपए, तो कंपनी करंट असेट्स में ना, करंट असेट्स में 1,10,000 1,20,000 जितना ही मेंटेन, मतलब जस्ट लिटिल अबाउ करंट लायबिलिटीज, सो दैट करंट लायबिलिटीज हम सफिशिएंटली पे कर पाए, उसके ऊपर जितना भी पैसा है इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्ट। तो कैन आई से कंपनी का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिटर्न, ज्यादा इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिटर्न, हाँ के ना? बट दोस्तों डोंट यू थिंक इन दिस टाइप ऑफ पॉलिसी द रिस्क विल बी हाई? करंट लायबिलिटी 1 लाख, आपके पास करंट असेट सिर्फ 1,10,000 या 1,20,000 है, तो डोंट यू थिंक रिस्की है? शॉर्ट टर्म इंसॉल्वेंसी दिख रहा है, हो सकता है, हाँ के ना? यस। सो इन दिस टाइप ऑफ अग्रेसिव अप्रोच द लेवल ऑफ करंट असेट्स मेंटेन्ड आर यूजुअली लेस, the returns are usually high. Why? Because more of the investment is made somewhere else. तो आप इन्वेस्ट करके रख रहे हो, तो आपका इन्वेस्टमेंट बेस अगर ब्रॉड है तो ऑफ कोर्स उस पे रिटर्न्स आपको ज्यादा मिलेगा, बराबर। एंड ऑफ कोर्स रिस्क इज आल्सो हाई बिकॉज यू आर मेंटेनिंग वेरी स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। यू आर मेंटेनिंग वेरी स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ करंट असेट्स ओवर योर करंट लायबिलिटीज, बराबर। इसके बाद दोस्तों कंजर्वेटिव पे जाते हैं, मॉडरेट बाद में डिस्कस करेंगे। कंजर्वेटिव अप्रोच में कंजर्वेटिव बोलता है प्ले सेफ, कंजर्वेटिव अप्रोच बोलता है प्ले सेफ। मतलब अगर 1 लाख का करंट लायबिलिटी है, 10 लाख का पैसा है, टोटल 10 लाख रुपीस है, 10 लाख का टोटल असेट्स है, तो इन दिस कंजर्वेटिव अप्रोच विल से दैट मेंटेन करंट असेट्स ऑफ अराउंड 3 लाख और 3.5 लाख। 1 लाख के करंट लायबिलिटी के सामने 3 लाख या 2.5 लाख या समथिंग लाइक दैट, 3.5 लाख, समवेयर अराउंड दैट मेंटेन करंट असेट्स। अब ये कहना है सफिशिएंट,
1 लाख का लायबिलिटी है, उसके सामने आप 3 लाख का करंट असेट मेंटेन कर रहे हो, तो दिस इज वेरी मच सफिशिएंट. कैन आई से बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग मोर इन करंट असेट्स, you are investing less somewhere else, and if you are investing less, your returns will also be less. Yes or no? Your returns will also be less. And बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, lower the returns lower will be the risk, या फिर lower the risk lower will be the returns. तो इधर रिस्क कम कैसे है सर? अरे 1 लाख का ही लायबिलिटी है, उसके सामने मेरे पास है ना 3 लाख रुपए, आओ आओ बिंदास, सब 1 लाख वाले सब आ जाओ, मेरे पास सफिशिएंट पैसा है, रिस्क है ही नहीं, रिस्क बहुत कम है. So to conclude till now, aggressive में current assets maintained less, conservative में current assets maintained more, aggressive में returns more, conservative में returns less, aggressive में risk भी more, conservative में risk less. Moderate बोलता है बेचारा, मैं दोनों के बीच में, मतलब मैं aggressive जितना aggressive नहीं and conservative जितना conservative नहीं, मतलब I will not invest in current assets a very low amount also, I will not invest in current assets very high amount also. बराबर 3 लाख भी नहीं और 1,20,000 भी नहीं, somewhere in between, 1,50,000, 2 lakh, somewhere in between. That is moderate approach. बराबर moderate risk, moderate returns. I hope this part is clear, yes or no. With this we finish the types of current asset policies. दोस्तों इस पे MCQs पूछ सकते हैं, okay? So I hope that is also done. And now the last point of discussion, that is maximum permissible bank finance. After this point we are done with this particular chapter. चलो तो डिस्कस करते हैं दोस्तों मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस. ओके, नाउ मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस का मतलब होता है हाउ मच कैन द बैंक ग्रांट लोन और फाइनेंस यू. ओके, दैट इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस. अब टंडन कमिटी नॉर्म्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, बराबर. टंडन कमिटी नाम का एक कमिटी था जिसने कुछ नॉर्म्स दिए हैं दैट हाउ मच कैन बी द MPBF दैट इज टू बी कैलकुलेटेड एज पर द 3 मेथड्स, बराबर. मेथड 1, मेथड 2 एंड मेथड 3, तीनों में कैलकुलेशंस अलग है, तो ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, सो दैट यू डोंट मेक एन एरर. कभी कभी पूछ सकते हैं ना, 1 मार्क का MCQ क्यों नहीं पूछ सकते, दैट डिटेल्स देंगे, कैलकुलेट द MPBF एज पर मेथड 2, कैलकुलेट MPBF एज पर मेथड 1, पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं. यू शुड बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स, बराबर. फॉर्मूला भूलना नहीं, फॉर्मूला अच्छे से पढ़ना है. चलो आ जाओ. टंडन कमिटी के हिसाब से MPBF कैन बी ग्रांटेड बाय एनी ऑफ दीज 3 मेथड्स. मेथड 1 will be simply 75% of working capital. Method 1 will be 75% of working capital. सर मतलब क्या? 75% of current assets minus current liabilities. बराबर. आप लोगों को current assets दिख रहा है? हाँ. current liabilities भी दिख रहा है? हाँ. What is net working capital? Current assets minus current liabilities. तो ये वैल्यू का 75% ले लो. This is the maximum loan that it can give. This is the maximum loan it can give. बराबर. मेथड 2 के हिसाब से दोस्तों 75% ऑफ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल माइनस करंट लायबिलिटीज. 75% ऑफ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल माइनस करंट लायबिलिटीज. तो पहले 75% ऑफ करंट असेट्स लेंगे, ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. समझो करंट असेट 1 लाख, तो 1 लाख का 75% विल बी 75,000, उसमें से समझो करंट लायबिलिटीज आर 40,000. तो 75,000 माइनस 40,000, MPBF विल कम टू 35,000, बराबर. 75% of current assets minus current liabilities. 75% of current assets minus current liabilities, बराबर. And lastly, MPBF as per method 3 will be calculated as 75% of current assets minus core current assets minus current liabilities. मतलब सबसे पहले आप current assets का टोटल लोगे, उसमें से core current assets हटा दो, ये जो वैल्यू आएगा उसका 75% ले लो, उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करो. एग्जांपल, लेट अस से करंट असेट्स 200 lakhs, करंट असेट्स 200 lakhs, बराबर. ये जो बोलूंगा दीज आर ऑल रुपीज इन लैक्स. करंट असेट्स 200, बराबर. कोर करंट असेट्स इज 40. मतलब क्या हो गया, करंट असेट्स आपका अभी 200 रुपीज है, कोर करंट असेट्स 40 है. What is core current asset? Core current asset is sir permanent working capital. मतलब इतना वर्किंग कैपिटल, इतना करंट असेट मैं हमेशा अपने पास रखता हूं. तो बैंक बोलेगा अगर तेरे पास इतना पैसा हमेशा ऑलरेडी है तो मैं इस पे लोन क्यों दूं? तो पहले इसको निकाल, बता एक्स्ट्रा करंट असेट्स कितना है. तो दैट इज करंट असेट ऑफ 200 माइनस 40, 160 इज द एक्स्ट्रा करंट असेट ओवर एंड अबाउ द कोर करंट असेट्स, बराबर. ओवर एंड अबाउ द परमानेंट वर्किंग कैपिटल, बराबर. तो 200 माइनस 40 करेंगे, आंसर आएगा 160. अब 160 का 75% ले लो, आंसर आएगा 120.
160 का 75% ले लो, आंसर आएगा 120। तो अब दोस्तों 120 लेट अस से करंट लायबिलिटीज है 80 lakhs, तो 120 में से 80 lakhs माइनस करेंगे, MPBF विल बी 40 lakhs, MPBF विल बी 40 lakhs। I hope this part is clear दोस्तों, that is all about maximum permissible bank finance also। बराबर, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, all the formula you need to practice at least once। MCQs में पूछने का चांसेस है डेफिनेटली, कैलकुलेट MPBF as per मेथड 1 और मेथड 2 और मेथड 3 कुछ भी पूछ सकते हैं, बराबर। सो डू स्टडी ऑल दीज फॉर्मूले ऑल्सो, एंड with this we complete the entire revision of your estimation of working capital, that is chapter number 2। See you guys in the next video. Thank you so much.